Hey guys, welcome back to my channel. So if you are new to this channel, so please make sure that if you like my videos, then please do subscribe and share and like. Right, so I guess it's a while ago that we have not completed our class 12th topic, that is sexual reproduction in flowering plants. So for today we'll be discussing the some topics like outbreeding devices, pollen pistil interaction, artificial hybridization, etc. So I guess without doing further delay, let's get started. So first of all, we should know that many plants are there which are hermaphrodite in nature. Now what do you mean by hermaphrodite? So hermaphrodite are those plants which have their own pollen grains which will be landing on their own stigma of the same flower, of their own flower, and the pollen pistil interaction will occur and the fertilization will occur. So that is also known as self-pollination, as we have discussed earlier that the pollination can be self-pollination as well as cross-pollination, right? And among self-pollination there can be autogamy, dichogamy, right? So for this, what is the main drawback of this? हम लोग जब ये बार बार पढ़ते हैं कि हम क्यों नहीं प्रमोट करते सेल्फ पॉलिनेशन, why it is not that much important, right? Why we always want that cross pollination should exist? So इसका रीजन सेम है जैसा हम asexual and sexual reproduction में देखते हैं. Asexual reproduction में there are minimum amount of or no negligible amount of variations present, right? But when we talk about sexual reproduction, we say that crossing over, recombinations, and like these events occur which leads to successful variations, which ultimately leads to successful survival. So the ultimate goal is to survive successfully. So the continued self pollination जब हम करते रहेंगे, so एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन? दैट कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं प्लांट्स में जिसको हम एक कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं, दैट इज दे आर इनब्रीडिंग डिप्रेशन. दैट आप कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस आप कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहे हो, आप उसकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहे हो. सो दैट मीन्स कोई भी चीज अगर कंटिन्यूड होगी, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा, दैट मीन्स नो वेरिएशंस आर एक्यूमुलेटिंग. आप सेम चीज, सेम जीन सेट, सेम फर्दर जनरेशंस में ट्रांसमिट होते जा रहे हैं. सो दैट विल लीड टू अ कंडीशन दैट इज नोन एज लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट? सो दिस इज द हार्म विच वी आर गेटिंग फ्रॉम repeated self-pollination. So in order to get protected or in order to avoid this continuous self-pollination, plants have developed a certain kind of outbreeding devices. So what are outbreeding devices? There are some mechanisms, there are some devices which plants have themselves developed or they themselves have adopted them in order to like escape from this condition. ठीक है? So उन्हें ये inbreeding depression नहीं चाहिए. So they want that they have to be protected from this. तो इसीलिए कुछ mechanisms they have devised which are categorized under a common outbreeding devices. So mainly there are 4 outbreeding devices or 4 mechanisms from which the plants can get protected or the plants can avoid this condition, that is inbreeding depression, right? Now outbreeding devices, the first outbreeding device is the pollen release and stigma receptivity. And stigma receptivity is non-synchronous. What do you mean by this? See, अगर हमें एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करवाना है तो हमें पॉलन रिलीज भी सेम टाइम पे करना पड़ेगा जिस टाइम पे हम स्टिग्मा को मैच्योर कर रहे हैं. दैट मीन्स स्टिग्मा रिसेप्टिव उसी टाइम पे होना चाहिए जिस टाइम पे वो पॉलन रिलीज होने वाला है. अगर इन दोनों का टाइम मिसमैच हुआ, सो फर्टिलाइजेशन कभी भी सक्सेसफुली नहीं होगा, राइट? तो
these both these processes, that is pollen release and stigma receptivity, should be synchronous, like should be occurring at the same time. तो अगर हम इसको मिसमैच कर दें या अगर प्लांट्स खुद इसको मिसमैच कर दें, सो रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी नो सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों? पॉलन रिलीज किसी और टाइम पे हो रहा है, उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले हो जा रहा है और उस टाइम तक पॉलन रिलीज नहीं हुआ है. दैट मीन्स एनी ऑफ दिस प्रोसेसेस, बट चाहे कोई आगे हो या पीछे हो, बट द पॉइंट इज दे आर नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट, राइट? सो दिस सर्व्स एज वन ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है? सो हियर what the plant do, it desynchronizes or make these two processes non-synchronous. ठीक है? The second point is both these pollens and stigma placed at different positions. Means अगर स्टिग्मा को मैंने ऊपर प्लेस कर दिया और पॉलन नीचे है, क्या कभी भी पॉलन शेड होकर स्टिग्मा तक पहुंचेगा? नहीं, राइट? सो मेनी ऑफ द प्लांट्स ये अडाप्ट भी कर सकते हैं कि वो अपने पोजीशंस चेंज कर दें, पॉलन्स की एंड स्टिग्मा की, राइट? तो अगर वो क्लोज बाय प्लेस्ड नहीं होंगे या उनकी पोजीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, तो पॉलन विल नेवर लैंड ऑन टू द सेम फ्लावर. ठीक है ना? So these two processes are mainly meant for preventing autogamy. So these two processes can only prevent autogamy, है ना? It cannot prevent gytenogamy. Why? क्योंकि यहाँ पे भी जब आप synchronous non-synchronous कर रहे हो तो आप same flower का ही देख सकते हो. You cannot decide for two different flowers on the same plant. So ये हो सकता है अगर उसका खुद का स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव, तो हो सकता है उसका दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, हो सकता है ना? सो दीज टू प्रोसेसेस, सिमिलरली दिस प्रोसेस, आप अगर पॉलन को नीचे रख रहे हो, स्टिग्मा को ऊपर रख रहे हो, तो ठीक है, वो उस खुद के पॉलन पे लैंड नहीं करेगा, मतलब वो सेम फ्लावर पे चलो नहीं हो पाएगा प्रोसेस, बट वो नीचे वाले या दूसरे फ्लावर ऑन द सेम प्लांट पे तो पहुंच सकता है ना. दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेसेस कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट नहीं करते हैं. दे ओनली प्रिवेंट व्हाट? one of the process of self pollination, that is autogamy. So these two processes do not prevent gytenogamy. ठीक है? The main point is this. Now the third outbreeding device is self incompatibility. Self incompatibility. What is this? So this is a genetic mechanism, right? दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म जहां पर आप ये इंश्योर करते हो, जहां पर प्लांट ये इंश्योर करता है दैट यू मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर दैट अ प्लांट विल नेवर अलाउ द पॉलन ऑफ द सेम प्लांट टू जर्मिनेट ऑन इट्स सेम स्टिग्मा. तो चाहे वो सेम फ्लावर पे हो या वो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट का हो, दैट मीन्स one plant has same gene set, one plant has same genetic structure. तो उस particular genetic structure का pollen, the stigma of the flower will not allow to germinate. ठीक है? That means this process is preventing autogamy as well as gytenogamy because it is not allowing the plant to germinate its own pollen, be it from the same flower or from the different flowers on the same plant. So this is the process where both gytenogamy and autogamy is being prevented. ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है एक एडिशनल फैक्टर और एक एडिशनल एडवांटेज. सो इसीलिए इसका नाम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, दैट इट मेक्स इट्स ओन पिस्टल इनकम्पैटिबल टू इट्स ओन पॉलन. ठीक है? सो ये सेल्फ इनकम्पैटिबल बन जाता है, तो ये कभी भी कंपैटिबिलिटी सेम प्लांट के पॉलन के लिए नहीं शो करेगा. ठीक है? नाउ द लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सी,
अगर कोई प्लांट है दैट इज मोनोशियस, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोशियस? मोनोशियस मीन्स सेम हाउस, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। सो अगर आप बायसेक्सुअल फ्लावर्स और मोनोशियस प्लांट कंसिडर करते हो या बायसेक्सुअल प्लांट कंसिडर करते हो, दैट मीन्स आप सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स रख रहे हो, सो वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के काफी चांसेस है, गाइटेनोगैमी। बट इफ यू आर लाइक अगर आप पपाया में देखो, पपाया में दे आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, वन प्लांट जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, अनदर प्लांट जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो वहां पे कभी सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है, वहां पे आपको 2 डिफरेंट फ्लावर्स पर जाना ही पड़ेगा, है ना। सो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इफ वी प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स तो ये ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाती है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है, एग्जाम्पल आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का पपाया, दैट्स वाई पपाया को हम डायोशियस भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज 2 हाउसेस डिफरेंट फ्रॉम मेल एंड फीमेल्स। वेयरएज अगर हम देखें कैस्टर और मेज, so these are bisexual flowers, these have bisexual flowers, तो यहाँ पर प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाएगा, बट लाइक इन पपाया एंड डेट पाम दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सो यहाँ पर आपको प्रमोट करना क्रॉस फर्टिलाइजेशन इजी होगा। सो दीज 4 वर द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सबसे पहले हमने पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को नॉन सिंक्रोनस बना दिया, नेक्स्ट में हमने उनकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं, थर्ड में वी हैव मेड द स्टिग्मा और द प्लांट इटसेल्फ इनकम्पैटिबल फॉर इट्स ओन पॉलन, एंड फोर्थ में हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन प्रमोट किया। सो दैट मीन्स ये सब के सब कहीं ना कहीं दे आर प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन एंड इनहिबिटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, ऑल्दो these 2 are preventing only autogamy but not gaetenogamy, right? But these are preventing both, so complete self pollination, right? So for by this we complete this outbreeding devices. So the next thing is pollen pistil interaction, ठीक है। So the name itself is saying very much that there is a kind of dialogue, there is a kind of interaction between pollen as well as pistil. So what is this interaction and what is this interaction based upon? तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज पता होना बहुत जरूरी है या ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि whenever we talk about pollination, तो हमेशा pollination, you know, स्टिग्मा के ऊपर thousands of pollens लैंड करते हैं, but every pollen कभी भी सक्सेसफुली pollen tube फॉर्म नहीं करता है, only 1 or 2 will be successful in this, है ना। So why is that so? ये डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है वो क्यों है और किस बेसिस पे? सो दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि अब स्टिग्मा जो है वो किस बेसिस पे पॉलन चूज कर रही है। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। अब ये कंपैटिबिलिटी क्या चीज है? तो कंपैटिबिलिटी है कि आपको चूज करना है कि या दैट राइट पॉलन शुड एंटर, राइट पॉलन शुड एंटर इनटू द राइट पिस्टल और राइट स्टिग्मा। सो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर होता क्या है कि स्टिग्मा हैज टू चूज, इट हैज टू मीडिएट सम काइंड ऑफ डायलॉग between the pistil and pollens and then choose that which of the pollen is the right one, है ना। और सिर्फ उसी को परमिट करेगी, सिर्फ उसी को अलाउ करेगी टू जर्मिनेट ऑन इटसेल्फ, राइट। सो ये सब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि व्हाट इज दिस डायलॉग एक्चुअली। तो ये डायलॉग पता चला कि ये डायलॉग एक्चुअली मीडिएट हो रहा था, दिस वाज मीडिएटेड बाय सम केमिकल्स और सम केमिकल कंपोनेंट्स। तो ये चीज पता चली कि ये कोई ऐसे हम डायलॉग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वो बातें नहीं कर रहे हैं, ये बातें किस तरीके से हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन और इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर और डिफ्यूजन ऑफ सम केमिकल्स। सो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि फॉर श्योर देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरैक्शन, राइट। नाउ दैट मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ डायलॉग और इंटरैक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। नाउ व्हाट इज दिस कंपैटिबिलिटी? कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, तो हमें 2 चीजें इंश्योर करनी है। पहली चीज, टू इंश्योर दैट सेल्फ पॉलिनेशन डू नॉट अकर, है ना।
तो वो एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अभी हमने पढ़ा, आउटब्रीडिंग डिवाइस था. सो सेम कि अगर मैंगो प्लांट में सेम उसी प्लांट का पॉलन आ रहा है, दैट मीन्स दैट शुड नॉट बी परमिटेड टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, है ना. सिमिलरली अगर कोई एप्पल का आ रहा है पॉलन तो उसे भी परमिट नहीं करना है. दैट मीन्स यू हैव टू इंश्योर टू थिंग्स, ना ही सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करो और ना ही डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन प्रमोट करना है. तो ये दोनों चीजें जो भी फॉलो करेगा पॉलन, दैट मीन्स which have come from different plant, that mean ensuring cross pollination as well as it is of the same species. That means these two factors will decide that yes, the pollen is right, the pollen is compatible, right? So this is the thing. अब जब compatible मिल गया तो अब क्या होगा, stigma will allow that pollen to germinate on itself. So now next what? तो अब क्या होता है, जैसे ये हमारा स्टिग्मा है तो यहां अगर पॉलन लैंड किया तो सबसे पहला स्टेप होता है दिस विल रप्चर दिस स्टिग्मा की वॉल एंड दिस विल फॉर्म द पॉलन ट्यूब. और ये पॉलन कभी भी खुद एंटर नहीं करता है, दैट यू नो. इट ऑलवेज जस्ट ट्रांसफर द टू मेल गैमेट्स. सो आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड बाय द पिस्टिल, द कंपैटिबल पॉलन जो होगा, कंपैटिबल पॉलन फॉर्म पॉलन ट्यूब. ठीक है, तो कंपैटिबल पॉलन पॉलन ट्यूब बना देगा एंड इस पॉलन ट्यूब में क्या होगा, सो दिस पॉलन ट्यूब विल बी हैविंग टू मेल गैमेट्स. As you know, in 60% of angiosperms, this pollen dehisce occurs at 2 cell stage. तो उनमें क्या होंगे, 2 सेल्स होते थे, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. सो जेनरेटिव सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स इन दिस पोजीशन. ठीक है, अभी तक नहीं हुआ था, अब होता है जैसे पॉलन ट्यूब में एंटर करते हैं. और अगर कोई ऑलरेडी 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में दे आर ऑलरेडी एट 3 सेल स्टेज, दैट मींस दे हैव 2 मेल गैमेट्स पहले से ही, तो उन्हें कुछ एडिशनल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर दिस पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, नाउ क्या होगा, तो ये हमारे पास एक पिस्टल है, ठीक है, और यहां पर हमारा ओव्यूल है. सो दिस पॉलन ट्यूब विल हेड ऑन टू दिस माइक्रोपाइलर रीजन and these 2 male gametes will enter through this micropilar region, and there is some structure that is filiform apparatus which is associated with this pollen entry, means it will guide the entry of pollen tube into this ovule. That means हमारे ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहां से आएगा, ग्रो करता करता माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगी एंड दिस माइक्रोपाइल में जैसे ही एंटर करेगी, रप्चर करेगी माइक्रोपाइलर वॉल, then filiform apparatus will guide or help the entry of these 2 male gametes, and finally these 2 male gametes will be released inside this ovule. So actually the whole process from the pollen deposition to this pollen entry inside the ovule is termed as pollen pistil interaction. ठीक है, सो सबसे पहले लैंडिंग हुई है, लैंडिंग के बाद पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के थ्रू पता चला थ्रू सम केमिकल्स दैट विच ऑफ दीज इज कंपैटिबल. जब पता चला कि one of them is compatible, then it will allow the formation of pollen tube. Pollen tube growth will occur, and inside the pollen tube, 2 male gametes will be present. So if the pollen will be shed at 2 cell stage, then the generative cell will divide to form 2 male gametes. If already present at 3 cell stage, then there will be no further division. Already 2 male gametes are present. So these 2 male gametes will further enter through the micropilar region inside the ovule, and this completes our pollen pistil interaction. Now after this, how double fertilization occurs and what is artificial hybridization, that we will be studying in our next lecture. So till then, stay tuned.